Good morning, good evening, everyone. Let's start with the discussion for orientation to PI. As I've told you, and you are being informed about the session orientation to PI. Just tell me one thing. What is the full form of PI? Personal What? Personal interview. interview. Personal interview. Everyone is well aware of PI means personal interview, right? Any logical reason why it is being called upon as personal interview only? It is one-on-one interaction with the It's a one-on-one interaction. interview. Perfect. Yes. Anyone else? Sir, one-to-one discussion. It's a one-to-one discussion. Yes. Anyone else? Why it is being called personal interview? That's a basic question. They gauge your personality and your overall grasp of concepts. Up to a limit, correct? Yes, they are judging upon your personality and all. Okay, I hope I should be the right person to answer you for this. Personal interview इसलिए बोला जाता है because it is all about you. It is personally about you and no one else. You are the sole person who is responsible for driving the entire interview. जो भी पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा और आपके बारे में पूछा जाएगा. That's all about personal. ठीक है. जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज के आपने होपफुली नाम सुने भी होंगे. You might have heard of something like टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. यहाँ पे इसको पर्सनल इंटरव्यू बोला जा रहा है. टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू नहीं बोला जा रहा है बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट योरसेल्फ. ठीक है. So whenever we are talking in terms of personal interview, the first or the most basic question we can ever have is, anyone? Tell me about yourself. Tell me something about yourself. This is how we are going to initiate the interview. ठीक है. देखो, in case अगर इंटरव्यूज के टाइप्स की बात की जाए तो अलग अलग टाइप के इंटरव्यू होते हैं. ठीक है. कई बार स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, कई बार फन इंटरव्यू होता है, कई बार लाइट मूड में इंटरव्यू लिया जाता है. डिफरेंट वेज आर देयर. But in case if we are talking in terms of majority of the interviews which are being conducted, and particularly in terms of your MBA colleges and all, majority of the interviews are being conducted on a similar lines, and the line starts with the "Tell me something about yourself" question. ठीक है. ये क्वेश्चन सब कुछ डिसाइड कर देगा इस इंटरव्यू के बारे में. दिस इज द सोल डिसाइडिंग क्वेश्चन फॉर द एंटायर इंटरव्यू. जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस सिंगल थिंग कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपने क्या किया. So this is the most important question you can have throughout the interview, because as an interviewer there are certain things that we need to understand on the part of interviewer. इंटरव्यूअर के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है. वो केवल इस बात पे आपको जज करना चाहता है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन दे दो उसके बेसिस पे वो आपसे जितना क्वेश्चनिंग कर पाएगा उतना करेगा और उसके बेसिस पे वो आपको जज कर लेगा. ठीक है. तो आपसे जब मैं इनके लेट्स अज्यूम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट यू. और ठीक है, अपना केस अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर इन कनेक्ट विद एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 months, लास्ट 8 months, लास्ट 10 months or something like that. So at least you know about me and I know about you. But when I'm talking in terms of the interviewer sitting in front of you, be it a interviewer from any of the interview panel of any of the colleges, that person is totally unknown to you and you are unknown to him. उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है. वो केवल एक सिंपल मोटिव से आपके सामने बैठे कि वो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है. तो पहली बात तो दोज आर हैविंग अ फोबिया फॉर इंटरव्यू ना, कि और पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाएगा. नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फोबिया. वो फोबिया खत्म करना बहुत जरूरी है. बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि क्या पूछ लेंगे आपसे, आपके बारे में ही तो पूछेंगे और तो क्या पूछ लेंगे. इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कुछ नहीं आता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. वो फोबिया लेके, ट्रस्ट मी, many of the students just fumble because of the phobia in front of the interviewers. They don't find right solutions or right answers at the time of interview because they are just having a phobia in their mind. उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. पीपल आर सो अफ्रेड कि यार इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. नो, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ये एमबीए कॉलेजेस के इंटरव्यू हैं. और अगर कोई सोच रहा है कि यार नहीं मेरा आंसर सही होना चाहिए, मैं हिंदी बोलूंगा तो भी चलेगा, तो नहीं चलेगा. यहाँ पे इंग्लिश ही चलेगी. इफ एनीवन फील्स लाइक ये जैसे आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा हुआ भी होगा कि आईएएस के इंटरव्यू में ऐसे आंसर दे दिया, आरएएस के, ये सब एमबीए में नहीं चलता है. एमबीए इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो वेयर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन नॉट यूज हिंदी इन बिटवीन. सो वो सारे जो मिसकॉन्सेप्शन है कि बीच में सर कुछ नहीं आता तो हिंदी में बोल दूं क्या, या फिर आई एम यूजिंग स्लैंग इन बिटवीन मेनी ऑफ द वर्ड्स लाइक हाँ हाँ, यस,
ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, बट ये जो फोबिया है ना, इसको निकालना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात समझना इतना जरूरी है कि इफ इट इज अबाउट इंटरव्यू, दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट योरसेल्फ, दैट्स इट। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा तो आप अपने बारे में बता सकते हो। Starting with the first question, this session it's all about orientation to PI, where I'll be just talking about what are the do's and don'ts of an interview. ठीक है, apart from the questions that we'll be discussing upon, do's and don'ts की भी बात करेंगे. That is something I'll be taking on a later stage. पहले answers की बात करते हैं, because answers are more important and more crucial for this. We are hardly a week away from the point where we will be actually having our interviews in the line. ठीक है, मैंने आज ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा भी है, कईयों ने नहीं भेजा. प्लीज डू शेयर योर इंटरव्यू डिटेल्स along with the name of the college and dates at the earliest possible. Now what is happening is कि यहाँ से एक हफ्ते के अंदर we are expecting कि many of you will be having your actual interviews. इस एक हफ्ते में what we can do is how we can plan up our studies for the same. They are going to play an important role. So starting with this, what we'll be doing is we'll be discussing about the different types of questions that are being generally asked upon in an personal interview. But yes, starting with tell me something about yourself. मैं इसका आंसर फ्रेमिंग आपको समझा रहा हूँ. आंसर आपको फ्रेम करना है, लिखना है. You have to get the answers corrected by me or Abhishek sir, and then you have to prepare the answers. We will be asking you the answers directly in personal mock interview. Right? Tell me something about yourself. Any one of you can please turn on the audio and can reply to me. Anyone? So may I? Okay, Jyoti. Fine. So, Jyoti, the first question is tell me something about yourself. Okay. I'll be starting the timer and I'll be just counting the seconds that you'll be speaking about yourself. Your time starts now. This is Jyoti Gupta, and I was born and brought up in Jaipur, Rajasthan. I've done my schooling from CD Public School, wherein I've got 83.4% in 12th and 81.4% in 10th standard. I've completed my graduation from IIS University from BCom Honors, wherein I've secured 74.79% in my final degree. I've also studied German as a certificate course in my college, where I have an outstanding level. I'm sorry. It's okay. Fine. So for Jyoti, without the preparation, it lasted for around 30 seconds. You're getting it. आपका लगभग 20 साल से ज्यादा का एज है सबका. And we are hardly able to speak about ourselves for 30 seconds. Anyone else would like to try? Anyone? Sir, I, Sorry, your name, please. Sakshi Meena. Sakshi. Okay. Sakshi, shall we start the timer? Ready? Okay, sir. Fine, let's start. Sir, my name is Sakshi Meena. I am basically from a village in Dosa district of Rajasthan, and my parents are farmers. I completed my schooling in and I completed my schooling and college in BSc from Rajasthan University, and as well as I am also worked in a national service scheme for 2 years. As per my hobbies, I like to reading self-help books, and I like to journal. It's all about me. Okay, fine. Thank you. It was for around 38 seconds that we had. Anyone else would like to participate, would like to speak about himself or herself? अभी तो अभी दो जनों का हो गया. सर मैं करूं? Okay, anyone please repeat. AI. Fine, I guess you can go with Nandini. Nandini Jain. Myself, Nandini Jain. I was born and brought up in Sri Ganganagar, Rajasthan. I did my graduation in BCom Honors from Metri College, Delhi University, where I had the opportunity of serving as the treasurer of the Finance Society of my college. I learned various skills there. I also did my internship from Youth India Foundation, where I have been the finance HR. I like to do detail work, painting, and love spending and capturing nature. Okay, so it lasted around 32 seconds. Okay, one last participant, anyone? So me. Okay, so we have two, Diksha and Niharika, I guess, right? So I can try if possible. I was just wondering why it's only about girls that were trying to participate in between. Like, अभी ठीक है दो चार लड़के Not an issue.
Okay, so I'm sorry, Diksha and Niharika, we can have a boy, please, Rajanya. So Rajanya can start. Right, sir. My name is Aditya Rathod. I was born in Jaipur, Rajasthan. And being from the army background, sir, I was brought up in various places like Pokhran, Jodhpur, Jaipur, Sikkim, Vientiane, Mizoram, and Delhi. I finished my 10th standard from Male College, Ajmer, and my 12th from Mount St. Mary's, New Delhi. I then finished my graduation from Delhi College of Arts and Commerce in Delhi University, where I did a BA program course in economics and human resource management. Post that, I tried for the army for 3 years, but I could not clear the selection hurdles. So in 2021, I joined the T Estate in Munnar, where I was an estate manager, and my job was to look after a 308 hectare estate, which is all its workings, small things. And yeah, that's basically me. My hobbies include traveling, trekking, horse riding, and sports. Thank you. Done. So it lasted for around 59 seconds. Okay. Okay. I won't get into the concept of giving you feedback, because this was the first interaction that we are having related to personal interview. And any day, as per my expectation, this first interaction was way too better as compared to what I was expecting. You guys spoke up about yourself in a very good manner. Yes, particularly for Rajanya, in case if anyone of you might have noticed, what happens is कि रजनी से जब अगर किसी ने बात किया हुआ है पहले तो इनका स्पीकिंग स्पीड बहुत तेज है. Speed, yes. So just in order to maintain the pace, what he was doing is he was taking a slight pause after every single statement. अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो जो बोल रहे थे वो तो फिर भी तेज था, because that is something beyond control. आप नहीं चेंज कर सकते उसको, लेकिन you can take a pause in between. ठीक है? So those who spoke before Rajanya, all the three girls, आप लोगों का स्पीड सही था, लेकिन उसमें पॉज डालोगे तो ये 30 सेकंड 35 सेकंड्स इंक्रीज होकर 40-45 हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग विद इट, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये था कि व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू वर स्टार्टिंग विद योर नेम, देन यू वर टॉकिंग अबाउट योर प्लेस, देन 10th स्कूलिंग, 12th स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में सर्टिफिकेशन है तो ठीक है, हॉबीज बता दिया, दैट्स इट. मोटा मोटी दिस इज ऑल यू वर टॉकिंग अबाउट. सो ये लाइंस जो आपकी है वो एकदम सही है, बट इसको मैं एकदम प्रॉपर फ्रेमवर्क दे देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाए कि, बिकॉज देखो कईयों के साथ क्या है, जैसे मैंने बोला कि यार किसी के पास सर्टिफिकेशन कोर्स है, अब देयर माइट बी अ कैंडिडेट जिसके पास एक भी सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होगा. नाउ ही विल बी थिंकिंग अबाउट अब मैं क्या रखूं, सर्टिफिकेशन तो है ही नहीं. ठीक है? देयर माइट बी अ स्टूडेंट जिसका 10th शायद 70 to 73% है, जो वर्थ नहीं है स्पेसिफाई करना, तो विल बी थिंकिंग अबाउट मैं 10th में की जगह डालूं क्या. तो कंटेंट थोड़ा सा वास्ट होना चाहिए. वील जस्ट टॉक अबाउट कि क्या क्या कंटेंट में डाला जा सकता है. स्टार्टिंग में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आइडियली इट शुड स्टार्ट विद योर नेम. और छोटी छोटी सी चीजें जो है मेरे को, मैं इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता रहता हूँ. यार देखो, नेम को थोड़ा सा स्पेसिफिक करो, है ना. ओके, सो फॉर एग्जांपल, कौन सा सबसे पहला नाम क्या आ रहा है स्क्रीन पे, पार्टिसिपेंट्स. ओके, अदिति. So, for example, Aditi, I'm taking interview of Aditi, and Aditi, the question is, Aditi, am I audible to you? Yes, sir. Okay. So, Aditi, I'm asking you a question. You have to reply on the spot. Okay. So, let's start. Aditi, can you please tell me something about yourself? So my name is Aditi Agarwal and I have born and brought up in Just take a Jaipur. hold. Done. देखो होता क्या है. My question was, Aditi, can you please tell me something about yourself? मतलब I was already aware of the name. Two things need to be taken care of. In such a case, either you don't take your name again because वो interviewer को पहले से पता है. My question wasn't tell me something about yourself. My question was, Aditi, can you please tell me something about yourself? I'm addressing the student with his or her name. मतलब I'm already aware of the name. So one of the way could have been you could have skipped your name वाला portion, because what happens is कि देखो कहीं ना कहीं जब ये आप सेम फ्लो में लाइनें स्टार्ट करते हो ना, तो सामने वाले इंटरव्यूअर को ये फील आ जाती है कि आप ये आंसर रट के आए हो, या वर्कड अप द आंसर. गेटिंग इट? बिकॉज मैं तो शुरू से ये रट रहा था. माय नेम इज आयुष जंगाज, आई वाज बोर्न एंड बॉटन इन जयपुर, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस, ये मैंने रट रखा था. जैसे ही क्वेश्चन पूछा, ओके हेलो आयुष, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, माय नेम इज आयुष जंगाज, देयर वाजंट एनी नीड ऑफ द सेम. गॉट इट? समझ में आया सब? Yes, Yes, sir. yes, It's a slight modulation से, this is something to be done by you yourself on the spot. तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो हमेशा याद रखने का है कि if it is
You are being addressed with your name. Better not to repeat. My name is Aditi Agarwal. You could have directly started. I was born and brought up in Jaipur. Because नाम तो पता है ना, तभी तो उसने नाम लेके बोला, hello Aditi, please tell me something about yourself. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just allow me 1 second. if I have charger connected. चलो अब बात करते हैं आगे। अब नाम पे क्या है, नाम आपने बता दिया, नाम पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है वो बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले इट शुड बी अबाउट योर नेम, नेम के बाद इट शुड बी अबाउट योर प्लेस, प्लेस के बाद इट शुड बी अबाउट योर एनीवन, Schooling. सॉरी स्कूलिंग, Schooling. स्कूलिंग मतलब एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या क्या आना चाहिए, सर एजुकेशन शुड इंक्लूड योर, यस मैम, सर उससे पहले मतलब आई बिलीव आई डोंट नो आई माइट बी रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं यस होना चाहिए फैमिली का। यार देखो मैम, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये जो हाँ पर्सनल इंटरव्यू है ना, इसका जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, हो सकता है अभिषेक से इससे टोटली डिसएग्री कर जाए, और हो सकता है तीसरा बंदा हम दोनों से डिसएग्री कर जाए, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव आंसर है जहाँ पे सबका हम्म अपना अपना अप्रोच है। मेरा हम्म बिलीफ है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यू रादर देन योर फैमिली। विल टॉक अबाउट द फैमिली, बट एट द लास्ट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से फैमिली को इंट्रोड्यूस करना शायद थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट कॉलेज, है ना। सो समवॉट प्रोफेशनलिज्म इज मोर रिक्वायर्ड। जैसे आपके पास वर्क एक्स है, तो यू डू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल कि सपोज अभी आप जॉब ढूंढने जाते हैं, यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू एंड द एचआर इंटरव्यू में यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट, ओके प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू वुड बी इन्वॉल्विंग योर फैमिली ओवर हम्म तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एमबीए कॉलेजेस में जाके यहाँ पे फैमिली को इंक्लूड करना थोड़ा सा गलत है। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज यू नो सामने वाले इंटरव्यूअर के पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है। राइट You cannot expect the interviewer taking your interview at 25, 30, 35 minutes. ट्रू मैक्सिमम 8 से 10, 12 मिनट का इंटरव्यू एक्सपेक्ट करते हैं अपन। हाँ हाँ अब इस 12 मिनट में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैं मैक्सिमम जो लेके चलता हूँ वो 1 मिनट लेके चलता हूँ। अब जब आपके पास बोलने के लिए 1 ही मिनट है, तो आप खुद के बारे में पहले बताना चाहेंगे या फैमिली के बारे में? ओके गॉट इट सर। मेरे को तो लगता है थोड़ा सा रेलेवेंस फैमिली का बात कम हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे, बिकॉज यू नो जब मेरे पास लिमिटेड टाइम है ना, आप मेरे को 2 घंटे दो, मैं घर वाले क्या मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर दूंगा। मेरे पास उतना टाइम होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इज इन केस इफ आई एम देयर इज अ लैक ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट यू नो द इंटरव्यू विल बी गिविंग अस लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज उसको बहुत इंटरेस्ट है अपने कैंडिडेट में, ऐसा नहीं है उसको अपने इंटरव्यूज खत्म करने, तो सर वो, यस मैम। सर जैसे मैंने कुछ अभी ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी थी तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि देयर इंटरव्यू लास्टेड फॉर लाइक 30 to 45 मैम minutes. डिपेंड्स ऑन द कॉलेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन से कॉलेज का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था याद नहीं। मैम, वो बहुत जरूरी है ना। अगर आप एक्सएलआरआई जमशेदपुर की बात करेंगे तो हो सकता है 45 मिनट्स को भी क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो हो सकता है 30 मिनट्स आराम से क्रॉस करेगा ही करेगा। वो कॉलेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। इन जनरल जो भी इंटरव्यूज अपन फेस करने वाले हैं उसमें मेजरली वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अ मैक्स ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट्स इज मैक्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगेन स्पेसिफाइंग विद द you know asterisk mark at the top, conditions apply. It purely depends upon the college, purely depends on the college. कॉलेज टू कॉलेज ये वैरी करता है कि कभी भी इंटरव्यूअर पे डिपेंडेंट नहीं होता। इंटरव्यूअर को टास्क किया जाता है कि इतने टाइम तक का तो इंटरव्यू होना चाहिए, so we can expect it to be a max of 15 minutes मेरे हिसाब से, बट यस इट प्योरली डिपेंड्स, ठीक है। अब जैसे अभी करंटली सिनेरियोज हैं कि नारसी मुंजी, यार आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आर बीइंग कॉल्ड अपॉन फॉर नारसी मुंजी का जीडीपी है। अगर 20,000 बच्चों का इंटरव्यू लेना है तो मैं कितने ही पैनल बिठा लूं, मैं लॉन्ग लास्टिंग इंटरव्यूज नहीं ले सकता। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द इंटरव्यू ऑफ 30 मिनट्स एट अ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सच अ ह्यूज क्राउड टू बी केटर्ड अपॉन, है ना। तो वो थोड़ा सा वेरी करता है। हो सकता है कई कॉलेजेस में जाएगा, यस जाएगा। जैसे इन केस अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं, वी कैन एक्सपेक्ट, आई एम इंदौर का अपने पास एक कॉल है, 100% वी कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यू टू बी दैट लॉन्ग। आई एम शिलोंग के कॉल से अपने पास, यस इट कैन बी दैट लॉन्ग। आई एम लखनऊ के कॉल से अपने पास, इट कैन बी दैट लॉन्ग। इनमें हो सकता है, बट इन जनरल बाकी कॉलेजेस में इट इज बिट डाइसी की इतना ज्यादा लेंथी जाने वाला, ठीक है। गोइंग अहेड, थोड़ा सा एक बार आगे चलते हैं।
10th की बात करते हैं एजुकेशन में, 12th की बात करते हैं अपने एजुकेशन में, ग्रेजुएशन की बात करते हैं। इन केस इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वी कैन टॉक अबाउट इट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो 10th 12th ग्रेजुएशन की बात करने का आपको, ठीक है, इसमें भी क्या क्या इंक्लूड करना है। अगर परसेंटेज ऐसा है जो आप बोलने में शर्म ना आए, शर्म, यू आर गेटिंग इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय परसेंटेज इज 72.4 in 10th and I'm specifying it, it's not being justified। परसेंटेज उतना होना चाहिए जिसके बारे में आप ओके, हाँ, परसेंटेज एटलीस्ट इतना होना चाहिए जिसके बारे में आप फ्लॉन्ट कर सकें। 93, 92, 91, 99, 98, yes, 100% to be specified। 10 CGPA, yes, 100% to be specified। Anything less than 80, better you don't talk about it। तो अब कम है, ज्यादा है, शर्म आती है, नहीं आती, जो भी वो सेकेंडरी बात है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात नहीं करेंगे। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 80, go for it, talk about it। if it is less than 80, better not to talk about it। same goes for 12th and same goes for graduation। graduation में you can talk about it to be अगर greater than 70 है, because generally graduation में 80 plus किसी का होता नहीं है until unless it's a private university। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज लाइक DU, लाइक RU, इन सब में तो नहीं मिलेगा 80 प्लस वाला केसेस। ठीक है, सो एजुकेशन की बात करने का, एजुकेशन के बाद आता है, यस एक रैंडम चीज पूछनी थी यस मैम, कि प्लीज। ग्रेजुएशन के जैसे मार्क्स ऐड होता है, हाँ तो फिर क्या स्केलिंग होती है क्या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज? हाँ भाई, हर कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन का वेटेज अलग रहेगा, और उस वेटेज को कैसे कन्वर्ट करना है वो अलग रहेगा। लेट्स अज्यूम, जैसे अभी नारसी मुंजी का मैं पढ़ रहा था कि 10% वेटेज है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड को, जिसमें से 5% वेटेज है ग्रेजुएशन को, 5% वेटेज है 12th मार्क्स को, राइट? एनएमआईएमएस में ये है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो, Yes, sir. है ना। अभी जो 12%, 5% वेटेज ग्रेजुएशन के मार्क्स को है, इसका होगा कैसे कन्वर्जन, वो देखना पड़ेगा। सो वो अलग अलग कॉलेज में वैरी करता है। कई कॉलेज क्या करते हैं कि 20-20 का स्लैब बना दिया, 0 से 20 में है तो 1 मार्क्स मिलेगा, 20 से 40 में 2, 40 से 60 में 3, 60 से 80 में 4, 80 से 100 में 5। कई इसको अलग कर देते हैं कि 100 to 80 5 नंबर, 80 to 70 4 नंबर, 70 to 60 3 नंबर। ये वैरी करता है और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, चलो Yes, आगे sir. चलते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट नेम प्लेस की बात की, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के बाद अब 2 कैटेगरीज आती है, वर्क एक्स पीपल एंड फ्रेशर्स। ठीक है, सो फॉर फ्रेशर्स, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक फेवरेट सब्जेक्ट की बात कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो मुझको ये तो एक्सपेक्टेड है कि आपसे एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट की बात की ही जाएगी। ये तो सब एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के किसी एक सब्जेक्ट पे पूछा जा सकता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक तरीका है कि मैं आगे से बता दूं, दूसरा तरीका है फिर वो खुद अपनी इच्छा से पूछेगा। तो आगे से बता दो ना, जो आप प्रिपेयर करके गए वही बोल दो, नहीं तो फिर वो आगे से पूछेगा, और वो आगे से पूछेगा तो फिर वो आपने मार्केटिंग प्रिपेयर किया, वो फाइनेंस भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो उसको ओपन एंडेडली कहीं छोड़ना ही नहीं है, उसको सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ताकि वो मेरे से वही पूछे जो मैं पूछना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट से पहले दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज आती है आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज, या फिर कोई डिप्लोमा, या फिर कोई लैंग्वेज, या फिर कोई ऐसा कुछ भी, रिसर्च पेपर, ये ऐसा कुछ भी हो, इसकी बात करनी है अपने को। इन सबको मैं इन डेप्थ लेके जाऊंगा, पहले आगे चलते हैं। इसके बाद विल टॉक अबाउट अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में क्या क्या आ सकता है? एनीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, related to academics, related to extracurricular, which include dance, singing, competition, anything like debate, extempore, anything like that। कहीं पे कोई भी सर्टिफिकेशन आपने जीता हो, कुछ भी किया, जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, ये बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है। आपका अचीवमेंट किसी भी चीज में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, वो सारे अचीवमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर्स। मैं वर्क एक्स वालों को थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यस, फ्रेशर्स के पास थोड़ा सा कंटेंट कम होता है, इसलिए उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अचीवमेंट्स, ये सारे अचीवमेंट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं लिस्ट ऑन। ठीक है सर,
यस। सही सारी अचीवमेंट्स वही लिस्ट करें जो मतलब रीसेंट टाइम में है, मतलब एटलीस्ट हाई स्कूल के बाद या फिर। हाँ मतलब देखो, कोशिश करो कि ग्रेजुएशन के हो, नहीं तो 10th के बाद के तो हो, एटलीस्ट हाई स्कूल हो, 11 12 तो हो। फिर भी अगर कुछ भी नहीं है और खाली छोड़ना पड़े तो फिर मैं थोड़े लो स्टैंडर्ड भी ले लूंगा, लेकिन फिर उनका लेवल अच्छा होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, 3rd क्लास में मैं इंटर हाउस कंपटीशन रिले रेस में सेकंड आया था। सो दिस इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। यस सर। ठीक है, 3rd क्लास में 100 मीटर रेस थी, लेकिन इट वॉज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट एंड आई स्कोर्ड सेकंड पोजीशन। दिस इज टू बी स्पेसिफाइड irrespective ऑफ ए 3rd क्लास का अचीवमेंट, क्योंकि इसका लेवल अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा है, स्टेट लेवल पे जा रहा है, नेशनल लेवल पे जा रहा है। यस सर। तो लेवल अच्छा है तो मैं ये स्पेसिफाई करूंगा। आई वॉज परसुइंग कथक व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, ये मैं स्पेसिफाई करूंगा। 4th स्टैंडर्ड में ओके था, सर। बट कथक का मैंने नेशनल लेवल अचीवमेंट किया है, मतलब मैंने नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या फिर मैंने मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। पूरा एक डिप्लोमा होता है कथक का, ठीक है। वैसे ही अदर कोर्सेज लाइक कराटे इज देयर, कराटे में देयर इज अ प्रॉपर पूरा प्रोसेस जहाँ पे आपका एक एक करके बेल्ट इंक्रीज होता रहता है। तो ये चीजें आप बचपन में ही स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स एट एन एज ऑफ 20 18। वो जो बचपन में स्टार्ट करते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चीजें अगर छोटी भी एज की है लेकिन लेवल बहुत अच्छा है तो विल स्पेसिफाई दैट। एज भी छोटी है, लेवल भी अच्छा नहीं है तो नहीं। और अगर एज बड़ी है तो लाइक कॉलेज लेवल पे मैंने कुछ भी नहीं है कि इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, चलेगा, ये भी स्पेसिफाई। तो अचीवमेंट सारे आ जाने चाहिए। अच्छा, इसमें एक स्कॉलरशिप्स भी होता है, कईयों को स्कॉलरशिप मिला हुआ होता है जिनको ध्यान भी नहीं होता है, क्योंकि आरयू में पढ़ते हैं, 40,000 की फीस थी, 20,000 कम हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन ये स्कॉलरशिप मिला है, इज्जत है, इसको स्पेसिफाई करना है। क्लियर है सर ओके सर। मैम? सर अगर ट्रेनिंग वाला चीज है तो वो सर्टिफिकेशन वाले में आएगा। इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं आप? मैम सर जैसे सर्टिफिकेशन वो ट्रेनिंग इन द सेंस जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग हो या फिर लाइक रिलेटेड वो होता है ना, सर्टिफिकेशन है प्रॉपर उसका सर। लीडरशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर ओके। है ना? चलो ठीक है। इन सब के बाद आते हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी आपके बारे में, अब आते हैं इसके बाद। ठीक है, हाँ, इसके बाद चलते हैं आपकी इंटर्नशिप्स पे। कईयों के पास होगी, कईयों के पास नहीं होगी, है ना। या तो इंटर्नशिप हो जाए, या फिर आपका कोई एनजीओ पार्टिसिपेशन हो जाए, या फिर आपका कोई एमयूएन टाइप के एक्टिविटीज हो जाए, या फिर आपकी कोई पेपर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने रिसर्च पेपर डाला था, यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ। आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया हो, उसका पब्लिकेशन हुआ हो, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अप टू अ लिमिट, अगर किसी के पास सीए का आर्टिकलशिप है तो वो भी चल जाएगा, अप टू अ लिमिट। लेकिन इसका रेलेवेंस यहाँ पे कम रहता है, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करना। लेकिन खाली जा रहा हो तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं वर्क एक्स पे। ठीक है, वर्क एक्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली यहां तक का जो कंटेंट है ना उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देना, क्योंकि आपके पास वर्क एक्स पे बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपके पास वर्क एक्स है तो मेरे को ये बिलीव है कि आपको वर्क एक्स का नॉलेज होगा। एंड अगर ऐसा है तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि आपसे 10th 12th या ग्रेजुएशन की कोई बात करे, क्योंकि वहां पे आपको अटकाया जा सकता है। इट हैज बीन, सपोज यू आर हैविंग अ वर्क एक्स ऑफ 2 years, दैट मींस यू वर नॉट इन टच विद स्टडीज एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 years। 3 साल की ग्रेजुएशन में तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं ना। करेक्ट। और 2 साल का वर्क एक्स, यस सर प्लीज। रजन, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं से पूछ रहा था कि वर्कएक्स में हमें मतलब पूरा स्पेसिफाई करके काम क्या करते थे, या फिर ये वेट टिल दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट वाज योर वर्क देयर। देखो मैं बता देता हूँ वर्क एक्स को। अब इसका आंसर फ्रेमिंग कैसा है मैं बता दूंगा आपको। मैं एक बार केवल हाँ की ठीक है। पॉइंट रहता है ना, वर्क ठीक है। एक्स के बारे में बात करनी है आपको। वर्क एक्स के बाद, अब ये सारा करने के बाद अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाउ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज और माय इंटरेस्ट, माय पैशन, ऑल ऑफ देम मीन द सेम ओनली। ये सब करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बता। नाउ आई टॉक अबाउट माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्लियर? यस सर। तो वीकनेस थोड़ी ना। यही था, कभी भी गलती से भी अपनी वीकनेस के बारे में बात नहीं करने का है। सर एक भी स्पेसिफाई नहीं करनी। नहीं, जब तक अरे ना मतलब पूछा जाए तब तक क्यों हाँ बताने ठीक का है, वीकनेस है? fair enough। अच्छा ओके।
गलती से भी वीकनेस की, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 10th में मेरा 72% है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई दिस बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव अबाउट मी. There is nothing positive and there is nothing to flaunt off when we are talking about 10th percentage to be 72. तो जब तक खुद के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं होगा मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा. No one is asking you. I'm just asking you, tell me something about yourself, and you are like, "ठीक है sir, I'm determined enough. I am hardworking, but at times I procrastinate." तो who the hell is asking you कि आप procrastinate करते हैं या नहीं करते? No one is asking you for that. So better not to specify any weakness of yours until unless being asked. जब तक आगे से ना पूछा जाए, weakness अपनी exist नहीं करती है. Ready रहना कि weakness होती है, लेकिन weakness exist नहीं करती जब तक आगे से ना पूछा जाए. So till the question is there in front of you, कि tell me something about your weaknesses. You are not going to speak anything negative about yourself, right? Right. Yes, sir. अब इतना सब करने के बाद जिंदगी में कुछ नहीं पता, तो फिर आपका फैमिली सपोर्ट आएगा. अब ये पोजीशन होती है दीक्षा मेरे हिसाब से फैमिली को इंट्रोड्यूस करने की. आई हैव टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, नाउ आई एम नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स, आई विल गो फॉर माई फैमिली. अल्टीमेटली समझ रहे हो ना, हाँ सर, गॉट इट. फैमिली इज ऑलवेज द बैक सपोर्ट. हम्म. तो पीछे रखेंगे, पीछे से कुछ भी नहीं बचेगा तो फैमिली को इंट्रोड्यूस करके लंबा ले जाएंगे. ठीक है, सो फाइन. ये आंसर मैंने बताया रेडी कैसे करना है. इसमें कंटेंट क्या डालना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, बट ये आंसर रेडी कैसे करना है ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा. Yes, Yes, sir. So one question, sir. यस प्लीज सर. So in my case, if I should I talk about my gap year or no? Not at all till the point not being asked upon. Again a So when negative I say about what, you. so after college I can straight say that I started working. हाँ देखिए After my हुआ क्या आपने 10th 12th कंप्लीट किया, ठीक है. हाँ उसके बाद यू डिड योर ग्रेजुएशन. हाँ उसके बाद 3 years यू टुक अ ड्रॉप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर SSB. yes उसके बाद यू गॉट इनटू योर जॉब. हाँ after the age limit passed अब एक for that. देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हो. झूठ बोलना और बातें छुपाना दो अलग अलग चीजें होती. हाँ सर. मैं आपको बस ये नहीं बता रहा मैंने 10th कब किया था, 12th कब किया था, ग्रेजुएशन कब किया था. हाँ मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ठीक है आई स्टार्टेड विद माय जॉब एंड ऑल. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट ना. आपके पास मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन है. आपके पास मेरी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, मेरा आईडी प्रूफ है, मेरा ग्रेजुएशन मार्कशीट है, मेरा वर्क एक्स डेट स्टार्ट है, ये है वो है, सब कुछ है. तो एक काम करो ना, फिर आप में भी दिमाग है, आप पूछ लेने का कि बीच में गैप की तो आपने बात ही नहीं की, गैप की. हाँ ठीक है सर, आई टॉक अबाउट इट. बट ठीक जब है तक सर. मुझसे आगे से नहीं Definitely. पूछा जाएगा आई वोंट टेल यू कि देयर इज अ गैप हियर इन बिटवीन. All right. सर जैसे मेरा तो खाली 1 ईयर का गैप है तो वो तो ऐसा इशू नहीं होगा ना. मैम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीशन है 2023 3. का, ये 1 ईयर का वो खुद पूछ लेंगे आगे से. व्हाट यू वर डूइंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 1 ईयर इन बिटवीन. जैसे मेरे पास में एक तो 3 महीने की एनजीओ सर्टिफिकेशन है और 2 महीने की इंटर्नशिप है. वो दोनों आप यहाँ पे बोल दीजिए पहली बात तो, हाँ है ना. और इन केस फिर भी वो पूछ ले तो बता देने का सर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ एंड देन आई डिड एन इंटर्नशिप एज वेल एंड मीनवाइल. और देयर मेरा पर्सनल बिलीफ है देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ. तो ठीक है सर, आई डिड अपीयर फॉर CAT 23 बट वाजंट एबल टू स्कोर दैट ग्रेट, सो आई joined an NGO for some time in between and then did an internship and then I started preparing for CAT 24 again. Nothing wrong about it. ठीक है. उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करना अपनी बेवकूफी है, क्योंकि अपन बेवकूफ बन रहे हैं, उनको नहीं बना. वो सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका काम ही इंटरव्यू लेने का है और अपने जैसे हजारों बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं. अपन उनको बेवकूफ तो नहीं. यस यस प्लीज. सर मैं 2023 में ग्रेजुएशन हुई थी तो मैं फुटबॉल का बता सकता हूँ, मतलब लास्ट ईयर तक. हाँ आई वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड मैंने यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. हाँ. ये मेरा विनिंग और ये मेरा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू कैन गो फॉर दिस. 100% विल वर्क. ओके सर. सर यस मैम प्लीज. सर जब तक सर्टिफिकेट ना हो तब तक इंटर्नशिप का मेंशन नहीं कर सकते ना. नहीं, बेटर नॉट टू डू दैट. आप अगर सर्टिफिकेट अरेंज कर सकते हो बिफोर द इंटरव्यू 100% इन्वॉल्व इट, बट नहीं कर सकते हो तो देखो ऑन द स्पॉट आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाए और आप नहीं दे पाओगे ना, तो इट विल गोइंग टू हैम्पर योर कैंडिडेचर. सो उस चीज की बात मत ओके करो. अगर सर. नहीं, इफ यू कैन अरेंज द सर्टिफिकेट दैट्स द बेस्ट थिंग कैन बी डन. सर वैसे मांगते हैं क्या सर्टिफिकेट्स? नहीं,
जो सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा ना, वो पहले ही मेल में स्पेसिफाई करेंगे कि पीआई के लिए आते टाइम ये डॉक्यूमेंट लेके आना। जो उन्होंने नहीं मंगाया वो उसको नहीं मांग सकते, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ अरेंजिंग द सर्टिफिकेट्स ऑन द स्पॉट। जो पहले से मंगा लिया वो सारा वो मांगेंगे और क्रॉस चेक भी करेंगे, बट जो नहीं मांगा वो नहीं मांगेंगे। ये है, ठीक है। चलो फाइन, सो आई होप सर दिस आंसर्स क्लियर प्लीज। सर जैसे अगर अभी जैसे मेरा वर्क एक्स के अंदर अभी वो चल रहा था सबैटिकल का, तो वो हाँ सैलरी स्लिप्स के लिए बोलेंगे क्या कि मेरे को कैरी करना है ऐसा करके? मैम, सबैटिकल में मेरे हिसाब से आपका सैलरी तो नहीं आ रहा होगा। हाँ, नहीं आ रहा था। सैलरी नहीं आ रहा है तो जो लास्ट सैलरी स्लिप आपके पास अवेलेबल है आपको वो दिखानी पड़ेगी। अच्छा, एंड यू कैन बी लाइक, ठीक है। आई डिडंट डिसकंटिन्यूड माय जॉब, आई वाज ऑन अ सबैटिकल। ठीक है। एंड चांसेस वर लाइक I'll join back probably in the month of February or March or whatever the date of interview, आप उस अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं I'm going to join back again for 2 or 3 months। अभी जैसे जैसे इंटरव्यू तो फेब के अंदर होगा और मेरा जनवरी का हाफ मंथ का आ जाएगा, तो मैं वो शो कर सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं आई ज्वाइन बैक इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। अच्छा, ठीक है। 100% बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ना। ठीक है, ओके सर। हाँ। एनीवन एल्स हैविंग अ क्वेरी, डाउट, एनीवन? सो आई होप आई गेव यू क्लैरिटी। लिखना कैसे, देखो यार, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कम से कम भी लगभग लगभग 500 वर्ड्स में लिखिए खुद के बारे में, जो कि मेरे को नहीं लगता 20 साल की उम्र में 500 वर्ड्स खुद के बारे में, यानी हर साल के 25 वर्ड्स लिखना बड़ी बात है। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो शायद मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ और शायद आपके दिमाग में आ रही होंगी, आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ भी आ रहा है तो यू कैन लेट मी नो, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर फिर भी नहीं है, आपको कुछ और लगता है, आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको एक केवल पाथ प्रोवाइड किया है कि इन पे चलने का है, दिस इज नॉट द ओनली पाथ। जैसे दीक्षा ने पूछा कि फैमिली को 100% फैमिली को इनिशियल फेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका है। So this is not the fixed path, it is just a way how to write about yourself. Answers may vary and may differ as per your candidature. सर सर जैसे Yes, ma'am. सर जैसे आई एम शिलोंग में जो क्वेश्चन था हु एम आई करके, Yes, ma'am. तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि यू कैन इंक्लूड योर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, तो वो ऐसे 100% इंटरव्यू में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा पॉजिटिव वे में करेंगे तो ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे I was preparing hard enough for CAT 2023. I didn't got through it with a well score. I got depressed. I was demotivated. I stopped, talking to anyone. I lost my contact with the society. I locked myself in the, ये नेगेटिव नहीं बोल रहे। अगर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इवेंट है गो अहेड विद इट, नेगेटिव है तो मत बोलना। ठीक है। यस सर। एनीवन एल्स? सर हॉबीज इंक्लूड कर सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ में? यस मैम, ये रहा हॉबीज। ओके, ठीक है। तो हॉबी शुड आइडियली बी द कंक्लूडिंग पार्ट, राइट? यस, बिकॉज लीस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। हाँ हाँ हाँ, ओके। एंड जैसे मेरा वर्क एक्स है, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है तो सही बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट वो एनीवे पूछेंगे उसके बारे में डिटेल में, तो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट माय जनरल प्रोफाइल ना, 2-3 लाइन में, ज्यादा यस डेप्थ यस, में नहीं बोलना ना। मैक्सिमम 4 लाइन्स मैक्सिमम। क्योंकि फिर वो, हम्म। अगर मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ अपने बारे में बता दिया ना, तो फिर वो आगे अपना दिमाग लगा के पूछेंगे। मैं नहीं चाहता वो अपना दिमाग लगे। हाँ मैं हाँ चाहता हूँ हाँ। कि आई वॉज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक एट द पोजिशन, एट द डेजिग्नेशन ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है। एंड माय जॉब रोल हम्म। बेसिकली इंक्लूडेड दिस 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 दिस, 4 लाइन राइट खत्म। राइट। ताकि हम्म। उनको क्यूरोसिटी रहे कि अच्छा और क्या करते थे ये बताओ। क्योंकि ये मेरा फोर्टे है, आप मुझसे पूछते रहो डिक कर करके, आई एम ओपन टू इट, मैं बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरी। हाँ मैं हाँ, नहीं नहीं, आगे से सही सब बात है। कुछ बता दूंगा, फिर आप अपना दिमाग लगा के दूसरा गड्ढा खोदोगे, मैं उसमें फंस जाऊंगा। ठीक है। सो उनको इस पॉइंट पे लाके छोड़ दो कि आप बी क्यूरियस अबाउट इट एंड आस्क मी अबाउट दिस थिंग। अच्छा इसमें और क्या था। ठीक है। जैसे आपके हाँ। केस में वर्क एक था, एक दो टेक्निकल टर्म्स यूज कर लिए, दैट्स हम्म इट, जस्ट लीव इट ओवर देयर ओनली। बंदा आगे से खुद ही पूछेगा अच्छा ये क्या होता है, मतलब बेसिकली यू ना गेटिंग इट, क्योंकि बैंकिंग के बहुत सारे टर्म्स आपको आते होंगे जो जनरल हम्म लोगों को नहीं पता होगा, लेमेंस लैंग्वेज में जिनका नॉलेज नहीं होगा लोगों को। तो एक दो हम्म। टर्म्स यूज कर लेने का, बंदा वहां पे अटक जाएगा। दे आस्क यू फॉर दिस, क्यूरियोसिटी तो रहेगा ही ना।
हाँ हाँ हाँ। बस वो उस फेज में लाके छोड़ दें। ये है। ओके। एनीवन एल्स? अगर ये इंटर्नशिप एनजीओ एमयूएन वाला स्लैब नहीं है अपने पास, तो अपना तो काफी बड़ा बिगेस्ट स्लैब हट जाएगा, तो उसके लिए कैसे करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऑल्टरनेट होगा। आपके केस में बता दूं? अबे हाँ तो बोलने का है। यस सर, यस सर। आपके केस में मैम ये सर्टिफिकेशन वाला है आपके पास? लैंग्वेज हाँ। वाला है आपके पास? हाँ जी। अचीवमेंट्स में यूनिवर्सिटी रैंक है आपके पास? यस सर। ठीक है। और एजुकेशन में है, 10th 12th है, फेवरेट सब्जेक्ट आप कर लेंगे। इंटर्नशिप नहीं है, एनजीओ नहीं है। एनजीओ नहीं है तो एक अरेंज करने की कोशिश कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या, एमयूएन अब होगा नहीं, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन अब होगा हम्म। और जैसे बैच होल्डर वाली चीज स्कूल लेवल पे। नहीं। अचीवमेंट्स में आ गया ना, एकेडमिक्स हाँ। अचीवमेंट। हम्म। हाँ, डाल देने का 100%। ओके। अब जैसे मेरे पास दो लैंग्वेजेस है, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों है ना? नो नो, जर्मन। जर्मन, केवल जर्मन है? यस सर। हाँ तो ठीक है, जर्मन का जहाँ डालो वहां पे एक की जगह दो लाइन डाल देने का। हम्म। कंपटीशन पार्टिसिपेशन भी है जर्मन में, हम्म। वो डाल देने का। ओके। ठीक है। चलो, अब इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे होती है वो देखो। आपने से जो पर्सनल इंटरव्यू का पूछा गया ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, माय मोटिव इज टू आस्क अबाउट यू एंड देन गेट यू ट्रैप्ड इन द आंसर बाय इटसेल्फ। मैं जो पूछने वाला हूं ना, मेरे लिए सामने एक बंदा है जो पता नहीं कुछ, कहाँ से बोलूं, नाइजीरिया से उठ के आया, मैं नहीं जानता हूँ उस बंदे को। तो मैं नहीं जानता हूं, तो मैं तो बस क्यूरियस हूं उसके बारे में जानने के लिए। उसने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछा, आई विल बी आस्किंग एवरी सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, सो बी रेडी फॉर दिस। जैसे ही नेम बोला, अगर आपका नेम कुछ यूनिक है, आप में से, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नेम यूनिक किसका है? राजन्या का यूनिक है। राजन्य, मेरे को वही लग रहा था। ओके, सो वन ऑफ द यूनिक नेम्स इज रजन्य। So first thing, what is the meaning of your name? Rajanya. There are two different meanings, sir, if you can think about it. One is that it's on the Orion's belt, it's the brightest star, supposedly, from what my grandfather told me, who Okay. named me. And the other is Rajanya means king of kings, Rajaon ka Raja, Rajanya. Okay, great. ठीक है, so जिनके भी यूनिक नेम्स है ना, उनको पता होना चाहिए। ठीक है। Surname. Last year we had a student and you must have heard about it, Akshat Khatwal. आप लोगों ने नाम Yes. सुना होगा। He was being asked upon कि खाटू वाला means are you someone belonging to खाटू? तो जिनका भी सरनेम थोड़ा सा यूनिक है, फॉर एग्जाम्पल दीक्षा, आगम कोटा वाला। आगम कोटा वाला। ठीक है। दीक्षा, योर सरनेम। ठीक है। ये जो थोड़े से यूनिक यस सरनेम सर। है, इनका ओरिजिन का भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर वाज द सरनेम बीइंग ओरिजिनेटेड, बिकॉज व्हेनेवर इट्स अ सरनेम, देखो अभी जनरल वाले छोड़ दो, गुप्ता छोड़ दो, शर्मा छोड़ दो, जैन छोड़ दो, ये जो बेसिक बेसिक्स हैं इन सबको छोड़ दो, अग्रवाल छोड़ दो, ये सब बहुत बेसिक है। अदरवाइज हर ओरिजिन का, हर सरनेम का एक ओरिजिन होता है, तो उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। ठीक है। सो आपका नेम, नेम का, अच्छा इसमें मीनिंग, मीनिंग के बाद सिनोनिम्स। ज्योति, टू सिनोनिम्स ऑफ योर नेम। प्रकाश एंड चार बूंदों वाला। सॉरी। उजाला, उजाला मैम, उजाला। हाँ, उजाला, प्रकाश एंड उजाला। ठीक है। तो यस, बेसिक क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड अपॉन, ये पता होना जरूरी है यार। मतलब मैं आपसे आपके बारे में ही पूछ रहा हूँ, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ यहाँ। क्लियर है? सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, क्या बेसिक बेसिक सा क्या पूछा जा सकता है। और ये जो अक्षत काटो वाला है ना, कम से कम 2 या 3 इंटरव्यूज में उससे पूछा गया आपका सरनेम का ओरिजिन क्या है, मतलब क्या लॉजिक है इस सरनेम। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू आर स्पीकिंग, राइट? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. For all those who are belonging to Jaipur, please do not copy my things as it is. But for all those who are belonging to Jaipur, my name is, okay, let me talk about myself only. My name is Ayush Akash. I belong to Jaipur, which is famously known as Pink City. आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है। दीक्षा, your hometown is Jodhpur, which is famously known as, दीक्षा, ब्लू या दीक्षा,
Blue City. दीक्षा गई. Anyone? Sir, Jodhpur is Blue famously City. famously known as Blue City. Blue City. Blue City. ठीक है, जिनको नहीं पता था पता कर लो. तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, प्लेस का नॉलेज. अगर किसी को बोलना है यहाँ पे तो आप बोल सकते हो, लेकिन प्लीज मैंने बोल दिया इसलिए हर बार कॉपी मत करने लग जाना. सर ने बोला था तो मैं तो कॉपी कर लूंगा. पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है. आपको पता करना है व्हाट इट इज फेमसली नोन एज. जनरली हर सिटी का कोई फेमस नेम होता है. उदयपुर को क्या बोलते हैं? City of Lakes. सिटी ऑफ लेक. ठीक है. ऐसे जनरली मेजरली ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं. कोई बाहर का किसी स्पेसिफिक जगह का है तो मुझे बता दीजिए. विल फिगर इट आउट कि उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है या नहीं है, या फिर कोई कॉमन नेम है, या फिर फेमसली नोन एज ऐसा कुछ है या नहीं. ठीक है. इसके बाद फेमसली नोन एज के बाद व्हाई दे आर फेमस फॉर व्हाट दे आर फेमस. जयपुर इज फेमस फॉर इट्स For its culture and vibrant. culture. Culture includes a lot. Sorry, Handicrafts. I think handicraft. Yes. Monuments, सर फूड. Architecture, Food culture, dance Traditional culture. कथक क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ये अपना क्या होता है? अरे क्या folk होता है? dance, फोक डांस क्या बोलते हैं? नहीं, Kumar, Kalbelia. घूमर. घूमर चाय भी अल्बेलिया नहीं है, घूमर. काली बनता है. वी आर बड़ी फेमस show. फॉर आवर फोर्ट्स. जयपुर के फोर्ट्स बहुत फेमस है. जयपुर का हिस्टोरिकल कल्चर बहुत फेमस है. जयपुर का फूड कल्चर एकदम अलग है. दाल बाटी चूरमा इट्स वन ऑफ द फेमस कुजीन्स वी आर हैविंग, राइट. So architecture, as in आर्किटेक्ट, चार ये द्वार है अपना जो अपने. सांगानेरी प्रिंट, हाँ. जयपुर का ब्लॉक प्रिंट फेमस है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है अपने पास. ठीक है. सो जयपुर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, और जहां पर मैं 20 साल रहा हूं, एटलीस्ट मुझे उस सिटी का तो आइडिया होना चाहिए. ट्रस्ट मी फॉर दिस. इट हैज बीन आस्क्ड अपॉन कि जयपुर से अगर लेट्स अज्यूम द इंटरव्यूअर्स फ्रॉम जयपुर, दे हैव आस्क्ड यू फॉर द रोड मैप फॉर डेस्टिनेशन बिटवीन लोकेशन बिटवीन two destinations are to be connected upon, like how can I reach from Bapu Bazaar to Tonk Road. This was one of the questions being asked upon. So यार मेरा कोई मतलब गेटिंग इट कि मैं कोई एक्सेप्शनल चीज आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ. जयपुर में 20 साल रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए. So you should have a basic idea about everything related to Jaipur. अभी रिसेंटली कौन सा फेमस पर्सनालिटी है जिसने जयपुर विजिट किया था? नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी. ठीक है. लास्ट जो विजिट हुआ है नरेंद्र मोदी का ही था. क्यों हुआ था? राइजिंग राजस्थान के टाइम पे कितना बड़ा इवेंट हुआ है, और इतनी फेमस पर्सनालिटीज जयपुर आई है. अब रिसेंटली अभी क्या हुआ है? आई एम नॉट श्योर हो गया है, होने वाला है, बट इट इज JLF. हो चुका है? नहीं सर, होगा अभी. होने वाला है. ठीक है. सो JLF कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स व्हेन आई एम टॉकिंग. जैसे ही जयपुर से बोला जाता है, अच्छा प्लीज टेल मी, तो गेटिंग इट की मतलब आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं तो गोवा का नाम आती, कौन से इवेंट का नाम याद आता था जो कि दिसंबर में होता है? सनबर्न. सनबर्न. सबको समझ में आता है कि अगर कोई बंदा गोवा से बिलोंग करता है तो उसको सनबर्न का आइडिया तो होना जरूरी है. यस सर. तो वैसे ही जयपुर से एक्सपेक्टेड रहता है कि बंदा जयपुर से, इसको JLF का तो पता ही होगा ना. JLF इज अ इंटरनेशनल फेस्ट. Literature festival है सर. सॉरी, So Jaipur Literature Festival ना? Jaipur Literature जयपुर Festival. लिटरेचर फेस्टिवल. I've been there. Okay. अरे many of the students must have participated as a volunteer, but Yeah. पता नहीं होता है. प्रॉब्लम ये है. तो ये पता होना जरूरी है. JLF की डेट्स पता करो, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज आने वाली हैं, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज पहले आके गई है पिछले साल. 4 साल पुरानी बात कोई नहीं करने वाला है, बट हाँ रिसेंटली पता होना चाहिए बेसिक. तो जयपुर से रिलेटेड जितना भी है वो सारा बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं. क्लियर है? यस सर. सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाई इट इज नोन एज पिंक सिटी? एनीवन? Because of its building color, na? Color of its buildings. Because of Walled its city. the entire Stone wall city which is were painted used. pink. Why it is painted pink? For Because the arrival Some of famous royal personality visit. British Yes, personality. there was Prince of Wales who visited, and to welcome him, it was a gesture from King of Jaipur at that point of time. I guess Maharaja Jai Singh. I'm not sure of it, but whatever it is, वो आपको पढ़ने का, मेरा इंटरव्यू नहीं है, आप पढ़ लेते हैं. क्लियर है? So Ramsin. टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, 10th-12th ग्रेजुएशन का आपने स्पेसिफाई क्या क्या करना है. स्कूल नेम अगर अलग अलग है तो मत करना है, वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, बहुत रेपिटेटिव लगता है. दोनों सेम स्कूल से. आई डिड माई स्कूलिंग
from Maheshwari Public School. I did my entire schooling from MPS. That's it. Being justified. है ना? और अगर वेल नोन स्कूल नहीं है तो प्लीज डू नॉट स्पेसिफाई इट. ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. लेकिन वेल नोन स्कूल नहीं है तो सामने रिकॉग्निशन होना जरूरी है. सेंट जेवियर्स इज अ वेल नोन स्कूल थ्रू आउट इंडिया, तो उसको आप कहीं पे भी बोलोगे वो समझ जाएंगे. ठीक है, अगर वेल नोन नहीं है तो आप अप टू अ पॉइंट, चलो ठीक है आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, बट अगर 10th-12th का अलग अलग है ना तो फिर स्पेसिफाई मत करना, कोई सा भी हो. मैंने 10th सेंट जेवियर से 12th एमपीएस से की थी, स्पेसिफाई मत करो. ठीक है क्यों सर, उससे क्या होता है? सर, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रेपिटेटिव, मतलब गेटिंग इट, कंटेंट मेरा ज्यादा चल जाएगा. हाँ दैट्स इट, नथिंग एल्स. ऐसा कोई ठीक है, टेक्निकल रीजन नहीं है ना. ठीक है, ठीक है. मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मैं आपके करंट के बारे में ज्यादा, 10th-12th भी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा बोर्ड है तो इसलिए अपना कंसिडर करते हैं. अपन कभी भी ये नहीं बताते ना 11th में इतना परसेंटेज आया, तो 10th का अपना एक वेटेज है, लेकिन उसका वेटेज इतना मत दो कि उसमें स्कूल नेम भी मेरे को 2 अलग अलग स्पेसिफाई करना है ना. अब So, जैसे so if I say, आपके केस में आई हाँ सजेस्ट यू स्पेसिफाई द स्कूल नेम बिकॉज दैट इज वर्थ इनफ. यू ठीक गेटिंग है, इट, मेयो कॉलेज इज बीइंग वेल नोन, तो वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बेटर है, तो उसको स्पेसिफाई 100% करना, अलग अलग है तब भी करना है ठीक है सर. ना. ये बहुत स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो अकॉर्डिंगली वैरी करेगा. प्लीज डू टेक ओके. केयर ऑफ दैट. फेवरेट सब्जेक्ट प्लीज, फ्रेशर्स के लिए तो ये मैंडेट है कि एक फेवरेट सब्जेक्ट बनाना ही बनाना है. फ्रेशर्स डू नॉट हैव एन एस्केप टू इट. वो पूछेंगे ही पूछेंगे. एक फेवरेट सब्जेक्ट लेके चलो, नहीं लेके चलोगे तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी पूछ लेगा आपसे. या तो आगे से जाके बोल देंगे गणित आती है, नहीं तो फिर मैं अंग्रेजी भी पूछूंगा आपसे. Getting it? You need to specify the subject that you are interested in. In case if you are not going to do that, the end is open on your part. The interviewer is going to ask you from any of the subjects. Clear है? यस सर. एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन जो अपन ले लेते हैं कि यार फेवरेट सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मार्केटिंग है, अब तो मुझसे मार्केटिंग ही पूछा जाएगा. द इंटरव्यूअर स्टिल हैव एन अथॉरिटी टू आस्क यू रिलेटेड टू फाइनेंस. तो आप खड़े होके ये नहीं बोल सकते अबे ओए मार्केटिंग बोला ना. You cannot be like that. You have to respond to finance questions as well as if being asked upon. अपन ये मैक्स ये कर सकते हैं कि ठीक है ना, मतलब मेरा मार्केटिंग है सर, आप मार्केटिंग से मुझसे पूछ सकते हैं, फिर भी उसकी इच्छा फाइनेंस की है वो पूछेगा और आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अपन टू बी ऑन अ सेफर साइड एक सब्जेक्ट तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ही जाएंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. चलो गोइंग अहेड, सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं. बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं ना. किसी के पास कोई ना छोटे मोटे सर्टिफिकेशन होते हैं जिनको अपन ऐसे ही समझ लेते हैं कि यार ठीक है ना यार, ये तो क्या ही काम है. उसको ढंग से देखो, पढ़ के देखो. कम से कम भी कोई सर्टिफिकेशन दे रहा है ना तो आज की डेट में वो इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पे तो एग्जिस्ट कर रहा हो. इससे छोटे सर्टिफिकेशन जनरली मिलते नहीं है, अपने स्कूल्स में भी जो मिलते हैं. ठीक है, सो इन सर्टिफिकेशंस की बात कर लो. कोई डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है, जैसे आईसीजीएंस के पास जनरली एक डिप्लोमा रहता है. ठीक है, क्योंकि आईसीजी में आगे से मैंडेट है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बराबर है. तो आईसीजीएंस के पास ये मेजरली मेरा जो इंटरेक्शन रहा है, मेजरली आईसीजीएंस के पास एक ऑप्शन रहता है कि डिप्लोमा उनके पास कुछ ना कुछ होगा. जैसे आई गेस किससे बात हुई थी, सुहानी शायद आपके पास है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला डिप्लोमा, यस सर. है ना. वैसा रहता है जनरली. ठीक है, लास्ट ईयर वी हैड अ कैंडिडेट जानवी पंजाबी, उसके पास रिसर्च पेपर था क्योंकि उसको आईसीजी की तरफ से इट वाज मैंडेट कि रिसर्च पेपर उसको पब्लिश करना है. उसने किया था, उसका रिसर्च पेपर सिलेक्ट भी हो गया था, पब्लिश भी हो गया था. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स वी कैन हैव. इन केस इफ योर रिसर्च पेपर इज गेटिंग पब्लिश्ड, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. तो ऐसा किसी के पास कुछ भी अवेलेबल है, गो फॉर इट. लैंग्वेजेस का जनरली मेरे हिसाब से शायद कॉलेजेस में रहता है, आईसीजी में तो स्पेसिफिकली रहता ही है. फॉर अदर कॉलेजेस यू कैन लुक इनटू इट. ठीक है, बाकी जो गरीब कॉलेजेस हैं आरयू वाले, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन जो भी है ठीक है, यू माइट हैव लर्न द लैंग्वेज. अच्छा, कई स्कूल्स में भी आजकल लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश. तो अगर किसी ने स्कूल लेवल पे भी किया हुआ है, वर्थ इट, स्पेसिफाइड. ठीक है, इसके बाद आते हैं अचीवमेंट्स पे. ठीक है, सो अचीवमेंट्स में ये जो भी स्पेसिफाई करना है सारी चीजें आप कर सकते हैं. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि अकेडमी की चाहिए. मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने जिंदगी में कुछ भी किया हुआ और सब कुछ किया हुआ. आई डोंट वांट एन अकेडमिशियन इन माय कॉलेज. मुझे मैनेजमेंट में वो बंदा चाहिए जो ओवरऑल पर्सनालिटी मेरे पास लेके आए. सो आउट ऑफ अकेड्स के बाहर का भी कुछ भी है ना, 100% ओपनली उसको स्पेसिफाई करो. बस लेवल थोड़ा सा चेक कर लेना कि यार एटलीस्ट नेशनल लेवल नहीं तो स्टेट लेवल तो होए. हाँ, अचीवमेंट्स में जैसे ये वंदन के पास है अपना फुटबॉल के इसके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, इसने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला हुआ है. और
तो ऐसा कुछ भी होता है तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। वंदन, डन है? हाँ सर। अरे हाँ, ये पर्सनल पे मैसेज कर रहा था कि मेरा नाम दो, मेरा नाम दो। ले लिया है। खुश? मैं कभी चलो, गोइंग अहेड। यस, अरे अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स हो गया, एकेडमिक्स हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने केवल पार्टिसिपेट किया है और आपके पास कोई विनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी लगाने का है। वो तो बहुत है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला अभी, वॉलंटियरिंग एक्ट्स जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, यहाँ पे इंटर्नशिप है, कोई वॉलंटियरिंग एक्ट है आपके पास, जैसे एनजीओ क्या, सॉरी, ये जेएलएफ हो गया। जेएलएफ में अगर किसी ने एज ए वॉलंटियर एक्ट किया है तो वो भी इसमें स्पेसिफाई करने का। ठीक है। सो जो भी अचीवमेंट्स है, डू स्पेसिफाई ऑल द अचीवमेंट्स। उसके बाद अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है, दैट इज अगेन एन एकेडमिक अचीवमेंट ओनली, सो डू स्पेसिफाई द सेम। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, कॉलेज की तरफ, बहुतों को पता नहीं होता है, कॉलेज की तरफ से 50% स्कॉलरशिप मिल गया, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना ही जरूरी है। इसको स्पेसिफाई और ऐसा करके देखने में भाई बहुत बड़ी बात थी। आपको पता है ना कि 12th में 80% में सबको मिलता है, सामने वाले उस बंदे को तो नहीं पता है। सो डू स्पेसिफाई कि इट वाज अ बिग डील फॉर अस, लाइक आई bagged a 50% scholarship throughout my 3 years of graduation. You getting it? How big it can be? तो स्पेसिफाई ऐसे करने का है कि भाई इससे बड़ा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। Talk about your internships, talk about your volunteering acts, talk about NGO participations, talk about MUNs, चारों आपके बहुत सारे MUNs है, MUNs का डिस्क्रिप्शन दीजिए, पेपर प्रेजेंटेशन है, आर्टिकलशिप भी है, तो स्पेसिफाई कीजिए। सर Yes. सर एक्चुअली 10th में मुझे 90% मिला था, तो सर 12th क्लास में मैंने जहाँ से की थी ना, तो प्राइवेट स्कूल थी, तो उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन किया था। तो सर मैं क्या ऐड कर सकती हूँ इस चीज को? 100% कर सकते हैं मैम। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके पास इसका कोई लेटर होगा जहाँ पे रिटर्न में हो? सर आई डोंट नो, बट सर वापिस लिखवा लेंगे टीचर से। हाँ, लेटर हेड में अगर वो लिख के दे दी दैट इज परफेक्टली फाइन। और ये 100% स्पेसिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाई करना जरूरी है, करना ही है। देयर इज नो अल्टरनेट कि करूं या नहीं करूं, करना ही है। 100% स्कॉलरशिप का मतलब समझ रहे, फ्री में पढ़ाई करके आए हो, तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। यहाँ पे 30 बच्चे हैं, 30 में से 29 बच्चे तो रुपए देके ही पढ़े हैं ना, तो यस इट इज अ सर। बिग अचीवमेंट, यू डू नीड टू स्पेसिफाई दिस। ओके सर। है ना? यस। ठीक है। तो यस प्लीज। सर एलओआर का भी मेंशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट अपॉन दैट। इसमें एलओआर भी आ जाएंगे आपके पास। एलओआर समझता है कोई एक्सेप्ट सक्षम? उसने तो कुछ पूछा ही। Letter of लेटर ऑफ recommendation. लेटर Letter ऑफ of रिकमेंडेशन। recommendation. बहुत बढ़िया। अरे भाई, फुल फॉर्म नहीं पूछा था। मतलब क्या होता है? देखो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरली क्या होता है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, इट इज नॉट ऑफिशियली सर्टिफिकेट बट प्रोफेशनली इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सर्टिफिकेट ओनली, कि आपको एक वेल नोन पर्सनालिटी, ऐसे मत बोलने का है ना कि मैं जिन सर से ट्यूशन पढ़ता था उन्होंने मेरे को एलओआर दिया था। ठीक है। अ वेल नोन पर्सनालिटी, इट कैन बी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, इट कैन बी डीन ऑफ योर कॉलेज, इट कैन बी हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट और एनीथिंग लाइक दैट is giving a letter of recommendation in your name. It's a big achievement. So जितने भी LORs आपके पास है, आपने कहीं से इंटर्नशिप किया हो वहां से आपको LOR मिला हो, आपके कहीं कॉलेज में किसी प्रोफेसर की वजह से आपको LOR मिला हो, आपने किसी प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया हो। अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट एज वेल, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होना चाहिए, है ना? तो प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया हो, वहां से कोई एलओआर मिला हो, आपको कहीं से भी कुछ भी एलओआर मिला हुआ है, डू मेंशन द एलओआर एज वेल। इन एलओआर को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है। यस, गोइंग अहेड। इंटर्नशिप तक का मैंने सारा डिस्कस कर लिया था, किसी का कुछ भी पॉइंट रह गया तो प्लीज डू आस्क इन बिटवीन, एल्स विल गो अहेड। सर ये एलओआरस भी सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के ही बेटर रहेंगे ना? नहीं 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 मैम, एलओआर आपका, अगर आपको स्कूल अगर आपका रिकॉग्नाइज नहीं है फिर भी आपके पास एलओआर है, गो अहेड विद, बोलना है। देखो, ओके इट इज सर। नॉट अबाउट डिमीनिंग एनी स्कूल, बट रिकॉग्नाइज का मेरा मोटिव केवल इतना सा था कि वो एक, समझ रहे हो ना, एक कनेक्ट फील होता है। जैसे रजनी ने पूछा है, यस रजनी सर। इज फ्रॉम मेयो कॉलेज, तो अभी मेयो कॉलेज इज अ स्कूल विच इज वेल नोन थ्रू आउट इंडिया, तो वो चाहे बंदा इंटरव्यूअर साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, वो समझ जाए, तो एक कनेक्ट फील होता है। सेंट जेवियर्स इसलिए बिकॉज सेंट यस। जेवियर्स पैन इंडिया अवेलेबल है। सारे सेंट जेवियर्स वैसे नहीं जैसा जयपुर वाला है, लेकिन पैन इंडिया अवेलेबल।
है ना। तो ऐसे रिकॉग्नाइज, एमपीएस की मैं बात करूंगा ना, तो एमपीएस मेरे हिसाब से केवल राजस्थान में, राजस्थान के बाहर नहीं है, एज पर माई नॉलेज, आई एम नॉट श्योर ऑफ। ठीक है, सो यस, तो ऐसे कॉलेजेस, अब बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आज की डेट में राजस्थान में ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर उनका आइडिया नहीं है। ठीक है, सो यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्कूल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, लेकिन एलओआर तो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैम एलओआर के लिए तो बोलना ही बोलना है Okay, sir. ना। ये है, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी? नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्कएक्स, वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर हैविंग अ वर्कएक्स। अब वर्कएक्स में क्या क्या बोलना है वो सुन लो। अच्छा, इंटर्नशिप का भी बता देता हूँ। इंटर्नशिप में यू हैव टू स्पेसिफाई ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ड्यूरेशन स्पेसिफाई करना है, कितनी देर कितने टाइम के लिए आपने इंटर्नशिप किया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन ड्यूरेशन, देन योर डेजिग्नेशन, आपका क्या डेजिग्नेशन था, योर जॉब रोल, एंड इन केस इफ यू हैव एनी अचीव इन द ड्यूरेशन, इन द टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप, वो सब स्पेसिफाई करना है। क्लियर है? यस सर। वर्क एक्स स्टार्ट करते हैं। वर्क एक्स शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ईदर विल वर्क। मतलब अगर आपके पास 3 वर्क एक्स है तो आप फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे भी आ सकते हैं, थर्ड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। लेकिन अपन जिस ऑर्डर में चल रहे हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, 10 12 ग्रेड, एंड देन आई एम कमिंग टू वर्क एक्स, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड वर्क एक्स पे जाइए, फोर्थ भी है तो अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड या मल्टीपल वर्क एक्स है ना, तो केवल लास्ट वाले को इलेबोरेट करना है, उससे पहले वाले दोनों को इलेबोरेट नहीं करना है। क्लियर? किसी के पास भी मल्टीपल वर्क एक्स है तो केवल एक जो आखिरी वाला है उसको इलेबोरेट करना, सारे को इलेबोरेट करने मत बैठ जाना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, करना क्या क्या है वो सुन लो। इलेबोरेशन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम तो आप तीनों का बताएंगे अगर 3 वर्क All एक्स। right. ठीक है, Okay. डेजिग्नेशन आप तीनों का बताएंगे और टेन्योर आप तीनों का बताएंगे कि आई वाज वर्किंग विद यू नो, firstly I was working with TCS for a tenure of 1 year, and I was working as a software engineer over there. Later on I switched to Accenture and I worked there for 6 months, and I was at the designation of a senior technical analyst, and then further on I joined into this organization where I am currently working, or I was working till the last. Clear? Organization name बताना है, ड्यूरेशन बताना है, डेजिग्नेशन बताना है, आपका जॉब रोल बताना है, आपका वही अचीवमेंट्स है अगर कुछ तो अचीवमेंट्स बताना है, बीच में कोई प्रमोशन हुआ तो साइकिल क्या रही प्रमोशन की वो बताना है। यस प्लीज। सर अगर जॉब रोल लंबा हो तो हाँ, कैसे बताऊं? जॉब लंबा हो तो बीच में एक हाँ, प्रमोशन डाल दूं। नहीं मतलब रोल लंबा है, व्हाट माय टास्क वर देयर, वो अच्छा, लॉट टास्क जॉब आई हैव रोल देयर। लंबा हो, सॉरी, तो हाँ, जॉब रोल रोल लंबा है, बहुत लंबा होना तो यार बहुत लंबे में समझो ना आप तो वो वही करते था थे, ना। लेकिन मैं बोर हो जाऊंगा उतना सुन के। हाँ, टिल दे आस्क मी आई शुड बी, थोड़ा सा हाँ, करूंगा। तो उसमें हाँ क्रिस्प होना चाहिए, जो जो आपको लगे ना यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डाल दो, बाकी हाँ, क्रिस्प करना है, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स ठीक डिस्क्रिप्शन। है सर, ठीक है सर। तो ये जॉब रोल को मैक्स मैक्स बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 4 लाइन्स। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जॉब रोल में कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे डाल दो जो मुझे नहीं पता हो, ताकि आई विल बी क्यूरियस एंड आई विल आस्क यू अबाउट दैट, बिकॉज ये आपका फोर्टे है। सो एवरी सिंगल इंडिविजुअल, यहाँ पे कौन कौन है जॉब रोल वाले? रजन्य, वंशिका, और कोई है? अदिति अग्रवाल, एज पर माई नॉलेज आई गेस, और तो कोई नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 3 ही है, बाकी और कोई जॉब रोल वाला वर्क एक्स वाला है तो बता दीजिए प्लीज। नहीं है, चलो ठीक Sir, है। I also have shown na family खुशी business. गुप्ता, राइट? हाँ, खुशी। Yes. तो अपने को क्या करना है, द फोर ऑफ यू, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज कि ऐसा कुछ टेक्निकल डाल दीजिए। ठीक है, जैसे रजनी आपका प्लांटेशन से रिलेटेड वर्क एक्स हाँ है ना, सर। तो यू कैन टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज टेक्निकल अबाउट प्लांटेशन, जो जनरल लोगों को लेमेन्स लैंग्वेज में जिनको नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, ठीक सेम है। गोज फॉर दिस वंशिका, वंशिका आपका फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, सो यू कैन यूज सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक्स और समथिंग लाइक दैट, जो शायद सामने वाले इंटरव्यूअर को नहीं पता हो। देखो फाइनेंस में वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि सामने वाले को नॉलेज ना हो, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ
So trust me, this is going to be very beneficial for you because ultimately this can be, ego hurting for the other person कि यार मुझे नहीं पता डन सर। है ना, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अदिति, आई एम नॉट श्योर ऑफ योर वर्क, you're working in the designation of HR, I guess, right? Yes, sir. HR से रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो आप बीच में यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल यूज मत करना, बट फिर भी एक दो टर्म्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर सामने वाले बंदे को उन टर्म्स का मतलब भी पता होगा ना, तो भी वो सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ इसको तो नॉलेज है सामने से टेक्निकल की। केवल बोल बेसिकली देंगे, होम लोन्स और माइक्रो लैब में था। ठीक है मैम, ये तो आपका सेक्टर हो गया, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे थे? आपका जॉब रोल हाँ एचआर का था, तो एचआर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, जैसे हाँ हाँ बहुत हाँ, बेसिक समझ सा गए। टर्म है, मेरे को ज्यादा नहीं आता है एचआर का, बट हाँ अरियर्स होते हैं। अरियर्स इज समथिंग जो शायद सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको तो समझ में आता है व्हाट आर अरियर्स, हाँ, यस है ना? सर, तो वी कैन यूज टर्म्स लाइक दैट। तो जॉब रोल में यस ठीक सर। है, वन ऑफ माय जॉब रोल वाज टू अप्रूवल ऑफ अरियर्स एंड ऑल एंड ऑल। तो ये इतना से डालने से मेरे को क्या बेनिफिट है कि जैसे सपोज करो मुझे नहीं पता, तो आई वुड हैव आस्क्ड यार ये क्या होता है, ये बता दो, समझ रहे यस हो? सर, और ये आपको यस बहुत सर। अच्छे से आता है, तो आप तो बता ही दोगे। तो वो चीज है, ठीक है। खुशी, आपका किस टाइप का जॉब रोल रहेगा? मार्केटिंग, Yes, sir. है ना? Like administration, basically. एडमिन का रहेगा, ठीक है। द बेसिक क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट? Okay, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट नीड टू अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिलेशन विद दैट, ठीक है। ये सब, इसके बाद हॉबीज, प्लीज प्लीज प्लीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग नॉवेल्स, यार ये सारी बकवास मत करना जिंदगी में, छोड़ दो। मतलब बोलना ही मत हॉबीज, अगर ये किसी की हो तो, ये जेन्युइनली भी किसी की ना हो ना तो भी मत बोलो, क्योंकि जेन्युइनली होने में भी आप फंसोगे ही फंसोगे, समझ लो। जेन्युइनली लुक फॉर हॉबीज, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज होती हैं, और मेरे को नहीं लगता हॉबीज फ्रेम करने की जरूरत है। एवरी सिंगल इंडिविजुअल आउट ऑफ यू, अगर ये मत बोलो सर टाइम मिलता है तो सो लेता हूँ, है ना कहीं मेरी उसे, एक हॉबी है रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। 100% गो अहेड विद इट, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, हाँ, वो तो पूरी है। बस। तो यस, 100% गो अहेड विद इट, एकदम यूनिक है, और आप जनरली आपको नॉलेज तभी हो सकता है जब जेन्युइनली यू आर डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। सो आपको नॉलेज है, इसका मतलब आप ये काम कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना आगे अटकाने में, ये चीज है। यस सर। तो प्लीज डोंट टेल मी कि सर सो लेता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो, और कोई हॉबी नहीं है, कुछ नहीं करता जिंदगी में, बैठा रहता हूँ एक कमरे पे, आई एम सो मोनोटोनस, आई एम ये सब मुझे नहीं चाहिए। कुछ अच्छा सा हॉबी बना के मत लाओ, सोच के लाओ। Like if I'll tell you about myself, if I'm, I'm working alone, I'm sitting alone, or I'm totally free वैसे तो by God's grace मेरे को ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा है आजकल कि I'll be totally free. But yes, in case if I have some spare time with myself, I like to walk, and to walk down to a garden, to sit on a bench or something like that. This is one of my hobbies. There's nothing wrong about it. कोई नहीं बोलता यार हॉबी मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल लेके आओ जो भाई करती ही। हॉबी इज समथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर फ्री टाइम, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन फिर वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। आई गो फॉर साइकिलिंग, जस्टिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। और इन सारे आंसर्स को कैसे बोलना है वो बहुत मैटर करता है, तो वो सारी चीजें मैं टेक्निकलिटी में समझाऊंगा बाद में, पर ठीक है अभी कटिंग इट शॉर्ट। समझ में आ गया हॉबीज कैसे लिखनी है? यस सर। So, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। आई नो होप सर। गोइंग अहेड, स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। दो चीजें, जब स्ट्रेंथ पूछी जाए तो केवल स्ट्रेंथ आएगी, एंड इट शुड बी अ मैक्स ऑफ 3, नॉट मोर देन दैट। भगवान ने सारी शक्तियां आपको नहीं दी है, औरों को भी दी है, तो अपनी शक्तियों को दो तीन ही बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना। 3 स्ट्रेंथ्स आर सफिशिएंट इनफ टू जस्टिफाई योर प्रोफाइल, इससे ज्यादा नहीं बताना। Every single strength of yours should be supported with an example.
विदाउट एग्जाम्पल आप स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे कभी भी। समझ में आ गया? हाँ सर। वीकनेसेस की बात नहीं करनी है। इतना सब भी करने के बाद मेरे पास अगर वक्त बच जाएगा तो आई टॉक अबाउट माई फैमिली। माई फैमिली शुड इंक्लूड माई क्लोज फैमिली। सर हम तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में तो 13 लोग हैं, तो 13 लोगों का नाम नहीं लेने का है भाई। वहां पे सामने वाला शादी का रिश्ता तो लेके नहीं आ रहा है आपके घर पे, इंटरव्यू तो ले रहा है एडमिशन के लिए। तो समझो, फैमिली केवल आपकी क्लोज, हमारे तो सर क्लोज ही है, तो भाई उनके साथ ही रह ले, फिर तो जाएगा कैसे? Close family means your close family, which includes your parents, your siblings, that's it. And if you are married by any chance, तो your spouse, that's it. इससे ज्यादा क्लोज फैमिली नहीं होती। सो फैमिली के बारे में वन लाइनर्स कि आई हैव अ फैमिली ऑफ 4, आई हैव माय पेरेंट्स, माय फादर, मदर एंड आई हैव एन एल्डर ब्रदर, दैट्स इट। ठीक है? एंड एनीथिंग लाइक कि माय फादर इज अ बिजनेसमैन, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। My father is a businessman. He is doing business in this organization. He's working in the designation of a manager. He's earning this much. He is more inclined towards this. आपके फादर को एडमिशन नहीं लेने का है भाई, उनके बारे में इतना मत बताओ। कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्रिस्प, कीप इट अप टू द लिमिट जहां तक सामने वाला बोर ना हो जाए। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. So, यस चीजें क्लोज फैमिली के बारे में बताने एंड वन लाइनर। सर यस मैम। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं मेरी स्ट्रेंथ क्विक लर्नर बताऊं, है ना, एंड मैं उसके लिए एग्जांपल दूं कि भाई मैंने स्कूलिंग एंड कॉलेज हिंदी मीडियम में किया है, तो सर जस्टिफाई करेगा क्या? लेकिन मैं यहाँ पर हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने मतलब ये जस्टिफाई कर देगा कि मैं क्विक लर्नर हूँ? समझ गया साक्षी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम। ओके सर। हाँ, सो साक्षी, देखिए, अग्री विद योर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपका जो स्कोर आया है वो क्विक लर्निंग कैपेबिलिटीज नहीं डिफाइन करता है। समझ रहे हैं? आपका मीडियम हिंदी था, आई अग्री विद इट। ठीक है? द बेटर वे कुड हैव बीन कि सर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, आई डिड माय 10th 12th एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदी मीडियम, स्टिल आई am trying hard enough to communicate in English. That shows my quick learning capabilities. And I'm even up to a limit, I'm working hard enough for that and I'm getting the outputs as well. Like I'm communicating in a good enough manner, not the best one right now, but yes, I'm working on it. So that can be a but I got an interview call is not because यार ये तो percentile basis पे है ना, और percentile तो आपका language dependent था नहीं। Got my point? यस सर। है ना? Anyone else having a query? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। Anyone? I guess no. चलो fine. So basics सर है। Yes ma'am, please. चारुल, सर वीकनेस पे अगर उन्होंने सामने से बात करी तो मतलब पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। ओके सर। कैसे? every strength is to be supported by example, every weakness should be supported by what you are doing to overcome it. ओके सर। Yes ma'am. चलो, all in all sum up करते हैं। ये पूरा आंसर लिखने के बाद मैं इसको चेक कराऊंगा, चेक कराने के बाद आई ट्राई टू रीड इट आउट। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरे हिसाब से बेसिक रिक्वायरमेंट से 500 वर्ड्स तक का हो जाना चाहिए। 500 वर्ड्स को जब आप देख के पढ़ोगे फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपकी स्पीड अच्छी होगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 1.5 मिनट्स तक में आप बोल लोगे। ठीक है? लेकिन सर हाँ, एक डाउट था, यस प्लीज। अगर
देर आर सम टॉपिक्स जिसको हम चाहते हैं कि इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाए, तो हाँ, हमें इसी आंसर में मेंशन करना चाहिए, राइट? 100% यस। तो अगर उसको इंक्लूड करने के लिए या तो टाइम लिमिट ओवर जा रहा हो या कुछ मेजर पॉइंट्स कट डाउन करने पड़ रहे हो जैसे इंटर्नशिप या समथिंग, तो इज दैट ओके टू? मैम उसका पोजीशनिंग मैटर करेगा। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, कैसा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? Say for example, I want them to talk about gender studies because that's a topic I'm very comfortable in. मैंने पढ़ा भी उसके बारे में, तो यू वांट टू टॉक अबाउट जनरल? जेंडर स्टडीज। अच्छा, जेंडर स्टडीज, परफेक्ट। आप समझा। देखिए मैम, यू आर अ फ्रेशर, राइट। राइट? यू आर अ फ्रेशर राइट नाउ। यस सर। वर्क एक्स है नहीं तो फेवरेट सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। राइट। कैन वी कीप इट टू बी जेंडर स्टडीज ओवर हियर, बिकॉज आपके साइकोलॉजी में आई गेस था, हाँ। है ना? तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई डेवलप्ड एन स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जनरल जेंडर स्टडीज। ठीक है, और एक दो लाइन इसके बारे में बोल दूं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत जाना, ठीक है। है ना? ओके। एक दो लाइन, बिकॉज अभी तक आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है कि यार लेट्स टॉक अबाउट, आगे से नहीं पूछा है, तो आई कैन नॉट इलैबोरेट इट वेरी मच। राइट। इट शुड बी इन रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म। मैक्सिमम एक दो लाइंस बोल दो। मेरे को नहीं लगता इसकी वजह से आगे जाके कुछ हैम्पर होने वाला है, और फिर भी कट शॉर्ट होगा तो फैमिली स्ट्रेंथ, हॉबीज हटेगा, वर्क एक्स हटेगा। इससे पहले वाला तो मैं फिर भी कवर कर लूंगा। फिर भी इन द राइट। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मेरा कुछ कट शॉर्ट हो रहा है तो ठीक है, आगे से इंटरव्यूअर ने मुझे बोलने से बीच में रोका है ना, मैं खुद तो नहीं चुप होने वाला। ऐसा तो नहीं 1.5 मिनट का टाइमर बच गया था और अब मैं चुप हो जाऊंगा, इंटरव्यूअर राइट। ही हाँ। रोकेगा। तो इंटरव्यूअर हाँ। अगर इंटरप्ट कर रहा है मतलब उसको पहले ही ऐसा कुछ अच्छा मिल गया है जिसके बारे में वो पूछना चाहता है। हम्म। Many of the cases are like कि ठीक है, okay, so yes, you were talking about gender studies, you told me about favorite subject, then you got to your internship, certification, diploma, blah blah blah. All of a sudden, okay, Palak, just take a hold. You were talking about gender studies. Can you elaborate me for the same? You described the entire answer. Okay, Oh, so Palak, can you please continue with your tell me something about yourself? This you kind of. want to? Okay. Oh, all right. Okay. तो आपने जहां पे छोड़ा था आपको वहीं से ही कंटिन्यू करना है। तो यू कैन बी लाइक, बिकॉज देखो होता क्या है कि फिर पूरा जब आप बार बार बोलते हो तो वो मक द आंसर का फील दे देता है आपको। तो व्हाट आई हाँ। डू इज कि ठीक है, तो सर सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ एंड आई टोल्ड यू अबाउट माय एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड ऑल, कंटिन्यूइंग विद द सेम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय अचीवमेंट्स एंड देन फ्लो में आ जाना, मैं वापस से करता हूँ, एक लाइन ऐड कर दो, ठीक है। है ना? ये तो ये 1.5 मिनट तक आप देख के बोलते हैं, ज्यादा में भी ले लो यार, 2 मिनट्स तक का ले लो। 2 मिनट तक आप जब तक देख के बोलते हैं ना, 2 मिनट का बोलते हैं। जब आप उसको याद कर लेते हैं तो बोलते हैं लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1 मिनट 20 सेकेंड तक का, क्योंकि याद तो सब कुछ रहेगा नहीं ना। याद करने के बाद आप देने आते हैं मॉक पीआई, अभिषेक सर के सामने या मेरे सामने, ये रह जाता है 50 सेकेंड, और फिर एक्चुअल इंटरव्यू के सामने रह जाता है 30 सेकेंड का। तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करने का है, जितना इलेबोरेटिव आंसर लिख सकते हो लिखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हमको लगेगा भी ना यार बहुत ज्यादा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हो रहा है, कट शॉर्ट हो रहा है, तो मॉक इंटरव्यू में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इसको कट शॉर्ट करने का है, या फिर जब आप आंसर चेक कराओगे तब हम बोल देंगे आप अपने बारे में जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना लिख के लाओ। मेरे को 4 लाइनें लिख के दोगे ना, तो मैं उनमें से 3 लाइनें हटा नहीं सकता हूँ। मेरे को 40 लाइनें लिख के दोगे तो मैं 20 लाइनें हटा के 20 लाइन का आंसर आपके लिए रेडी कर दूंगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एक्ट अकॉर्डिंगली। ये क्लियर है यहाँ तक? शैल वी गो अहेड? यस सर। यस चलो ठीक है, बढ़िया है। स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, बढ़िया से स्क्रीन लग रहा है सब। सर ऑलरेडी टेकन। ले लिया क्या? बढ़िया है, बढ़िया है यार। मैं भी ले ही लेता हूँ एक बार, अच्छा लग रहा है मेरे को। ओह शिट, नहीं मैं नहीं ले सकता। जिसने भी लिया है वो शेयर कर देना मुझे प्लीज। चलो शैल वी गो अहेड? यस सर। यस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ था, इसके आगे बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद विल वाइंड इट अप, बहुत ज्यादा हो गया। ओह ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसके बाद जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं
पहला, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। प्लीज 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 गूगल मत कीजिए। आपने जितने भी आंसर्स लिखे अपन एआई डिटेक्ट कर रहे हैं, एआई डिटेक्ट में सब पता चल जाता है। बेटर नॉट टू डू दैट। जेन्युइनली बैठ के सोचो मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द वर्ड एडमेंट? So could you repeat the word? एडमेंट, ADAMNT, Ziddi. जिद्दी। If someone will ask me for my strength, trust me for this, I'll say I am adamant. अपने को जिंदगी में अपन ही सच्चे लगते हैं। Nothing wrong about it. That's one of my strength, and I truly believe this is one of my strength. You need to think about yourself. You will figure out the strengths that you are having. मतलब ठीक है, in the worst case scenario कुछ भी ना है तो genuinely talking about it, strengths होंगी, बस सोचो। You getting it? Just need to think about yourself. You will be easily able to figure out the strengths. आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा वीकनेसेस क्या है। देखो, जो जेन्युइनली हाई IQ वाला वीकनेस लिखता है, जो जेन्युइनली एक केस है ना हाई IQ वाला, वो तो उसको जस्टिफाई भी कर देगा। मतलब इंटरव्यूअर ने उसको थोड़ा सा डाटा और वो रो देगा। लेकिन जो फर्जीवाड़े में हाई IQ लिख देते हैं ना, वो फंस जाएंगे। तो जो जेन्युइनली आपकी मिस्टेक है, सर 30 मिनट से बचे थे, आंसर फॉर्म सबमिट करना था, कुछ नहीं मिला, वंदन वाली कॉपी कर दी मैंने। तो एक काम करने का, इंटरव्यू में भी वंदन को भेज देने का। So यस मैम। strength, high EQ strength कैसे हो गया? दो चीजें, एक तो मैंने नहीं बोला हाई IQ स्ट्रेंथ है, और दूसरी बात, आई Okay. स्टिल बिलीव हाई IQ कैन बी स्ट्रेंथ। आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैटर करता है। इन एवरी Okay. सिचुएशन you cannot be on a neutral ground. At times you have to think emotionally. Munna Bhai was one of the best examples. Munna Bhai movie देखा होगा, right? Munna Bhai MBBS. Yes, sir. ठीक है, talking about the dean of the college, Professor Asthana, उनका EQ बहुत कम था और मुन्ना भाई का EQ बहुत ज्यादा था। Don't you feel like it was his strength? वो जिस हिसाब से उस चीज को यूज कर रहा था। I'm taking an example from a movie which is not being justified. I'm just trying to explain होता क्या। तो high EQ can be a strength. What's wrong with it? High EQ doesn't mean that every situation I'm going to think with high emotional quotient only. Highly emotional होके नहीं सोचने वाला हूँ। But I have a high EQ, मतलब I can sense upon the problems others might be facing. So I can take my decisions, in a proper manner, in a more decisive manner. अगर मैं ब्लाइंडली बिना इमोशनल कोशेंट के सोचूंगा तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों की परेशानियां नहीं समझ पाऊं। बीइंग अ मैनेजर, आई एम सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट माय टीम इज गोइंग टू फेस और दैट माय टीम इज प्रेजेंटली फेसिंग। गेटिंग इट? Understood. तो वो चीज है। आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं मैम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो इट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ strength, depends on the way that you are presenting it, right? हाँ जी. Max of 3 strengths plus example for every strength, max of 2 weaknesses plus what you are doing to overcome it, overcoming measure। कर क्या रहो इसको खत्म करने के लिए। और प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंटरव्यू लूंगा ना, मतलब इन केस अगर इंटरव्यू लेने वाला बंदा मेरे जैसा होगा तो वो झिल जाएगा। मेरे को गुस्सा बहुत आता है सर, आई लूज माई टेम्पर इजीली, एंड टू ओवरकम इट आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट। सामने वाले को पता है आज की डेट में कोई मेडिटेशन नहीं करता। इलॉजिकल रीजंस मत दो उसको, इलॉजिकल सॉल्यूशंस मत दो। यू एक्चुअली फील लाइक कि आज की डेट में आपके ऐसा कोई एक्विंटेंस है जो मेडिटेशन कर रहा है क्योंकि उसको गुस्सा बहुत तेज आता है? जेन्युइनली जस्ट अ यस और नो ऑन योर पार्ट। नहीं है ना यार।
तो नहीं है तो सामने वाला इंटरव्यूअर भी अपनी ही सोसाइटी से कहीं बिलोंग करता है, उसको पता है ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसको बेवकूफ बनाना बंद करो, रिस्पेक्ट हिम, उसको सच बोलो जाके। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो, ये स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वाई एमबीए। अब यार देखो, मैं तो वही बोलता हूँ, सच बोलो, लेकिन आप इसमें ये नहीं बोल सकते सर एक महंगा वाला पैकेज चाहिए, कम से कम 20 लाख, 22 लाख, 28 लाख, 26 लाख तो लगे इसलिए आपके कॉलेज में आना है, नहीं तो भाड़ में जाओ आप और आपका कॉलेज। आई डोंट केयर अबाउट। ये वाला सच नहीं बोलने का, इसको थोड़ा मोल्डेड फॉर्म में बोलने का, मतलब इट शुड अपीयर प्रोफेशनल। ठीक है, तो फॉर दोज हैविंग अ वर्क एक्स यू कैन सिंपली रिलेट इट लाइक कि सर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का वर्क एक्स लिया, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं था, एक डिग्री मिसिंग था, इसलिए मैनेजरियल पोजीशन पे प्रमोट नहीं हो पा रहा था, या सर फिर एग्जैक्टली मैंने जूनियर लिखा है लेवल मैनेजमेंट पे पहुंच पाया, सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे नहीं पहुंच पाया, या just because of a lack of a degree. So that's why I'm here. I want to complete my formal education for the same. इसको आंसर प्रॉपर्ली फ्रेम होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख सकते। फॉर दोज हु आर बिलोंगिंग टू द फ्रेशर्स कैटेगरी, इट कैन बी सिंपली लाइक कि सर देखो बेसिक बेसिक एजुकेशन सारा ले लिया है ना, एंड आई थिंक लाइक रादर देन इन्वेस्टिंग in rather than sorry investing in education at this point of time can be the best one I have, can be the best option I have, because I feel like in case if I'll be completing my education in management after completing my BCom or BBA or whatever it is, I'll be having some some greater level of skills which will be helpful for me to start up or to initiate my professional career. There are some basic set of skills are required which I feel like I'm missing upon being a graduate, and I feel like in case if I'll be getting into the concept of masters, I'll be able to acquire those skills and will be able to develop those skills in my personality which are going to help me out in my professional career. ये है। बाकी आपके कॉलेज में ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, आई विल बी एन असेट टू योर कॉलेज, ये बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं, व्हाई शुड बी सिलेक्टिव, आई एम गोइंग टू बी एन असेट टू योर कॉलेज। सच्ची, you are going to be an asset to my college. Just think about it. How can you say like that? But बच्चे बोल देते हैं। ठीक है सर, with no offense to anyone, Vandan, sir, I play football very well. Trust me for this. If you are going to select me, I am going to represent your college at national level tournaments. How do you know who is the captain of my team right now and how better or how worse you can be in comparison to him or her? I don't know all these things. So please don't take these words. Why MBA? Clarity से hopefully समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग देखो थोड़ा सा मेरे को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। It is way too long that we are stretching the session, and I hope like count धीरे धीरे reduce हो रहा है। Better you leave by yourself. Let me wind up the session. So yes, why MBA का I hope you must have got an answer. In case if anyone is having a doubt, you can ask me for that. it's fine, sir. No, sir. चलो, going ahead. Third biggest achievement. देखो 99% लोगों को तो आके बोलते हैं सर कुछ ही नहीं किया जिंदगी में आज तक, और फेलियर प्लस लर्निंग आउट ऑफ इट, बी इट एन अचीवमेंट और फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग एसोसिएटेड। सो बिगेस्ट अचीवमेंट या फेलियर जो भी है आपका, सच सच बोलो, प्लीज डोंट स्पीक लाइक सर कैट का स्कोर ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो किया होगा, genuinely कुछ ना कुछ तो किया होगा। नीड नॉट नेसेसरी टू हैव अ प्रूफ ऑफ इट। एट टाइम्स आई फील लाइक कि यार इसमें आप कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हो ना जिनको तो ऐसी स्पोर्ट्स या फिर बहुत कोई भी हो सकता है। कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एनीथिंग, योर पर्सनल लाइफ कैन कम इन, योर प्रोफेशनल लाइफ कैन कम इन, योर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, एनीथिंग कैन बी लाइक दैट, विल वर्क। और उसका जो जेन्युइन लर्निंग्स है वो बोलने का है। ठीक है, ये जो मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख पा रहा हूँ इनके आंसर्स मुझे रेडी चाहिए होंगे, मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बाकी इनके आंसर्स मुझे रेडी चाहिए होंगे। ठीक है, व्हाई शुड बी सेलेक्ट यू, अल्टीमेटली इट्स अ मोल्डेड फॉर्म ऑफ योर स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, ये वापस से बोलने का है, बट ये नहीं बोलने का है कि आई कैन बी एसेट, आई विल प्रूव टू बी एन एसेट टू योर कॉलेज।
अभी तक ना पहुंचे उस लेवल। ठीक है, वाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज लाइक टेकिंग इट टू बी SIBM, तो वाई SIBM पुणे? उनको उनके कॉलेज का सब कुछ पता है, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मेरे कॉलेज के इंटरव्यू में बैठने से पहले इसके बारे में पढ़ के आए या नहीं है। तो ये क्वेश्चन का मोटिव मेरा इतना सा है कि हाउ जेन्युइनली यू आर थिंकिंग अबाउट माई कॉलेज। आप मेरे कॉलेज की वेबसाइट देखे बिना आ गए हो। It was being asked upon in the interviews last year only. If you are talking about symbiosis, SIBM Pune, what do you mean by the term symbiosis? Symbiosis का मतलब बताओ। बच्चे उसमें भी अटक गए थे। You getting it? तो ये सारे आंसर्स रेडी होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जिस भी कॉलेज के Yes, sir. इंटरव्यू के लिए चाहे प्लीज उसका थॉरो स्टडी करिए। उनकी वेबसाइट खोल के देखिए, उनके प्लेसमेंट सिनेरियोस देखिए, उनका अपना एडमिशन ब्रोशर देख लीजिए। इसमें सब कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट हो गया, एडमिशन ब्रोशर हो गया, प्लेसमेंट्स हो गए, सब कुछ मिलता है आपको इसमें। ठीक है, Yes, sir. और क्या क्वेश्चन आ सकता है? आई होप दिस इज सफिशिएंट। इतने क्वेश्चंस आप रेडी कर लीजिए, बाकी तो फिर ऑन द स्पॉट में इंटरव्यू के लिए भी मैं कुछ बचा के रखूंगा ही रखूंगा। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू प्रिपेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। One last time, in case if anyone of you is having a query, you can ask me for that quickly. So not related to this. I'll call you later. Sorry? Not related to this. It's not related to the interview process. Something else. I'll just message you, sir. No issues. If a call is required, you can go give me a call tomorrow morning. We can discuss it over call as well. No issues with that, sir. We'll work. Anyone else? सर Yes, ma'am, please. सर अगर करंट अफेयर्स के बारे में नहीं आइडिया हो जो उन्होंने पूछ लिया हाँ, तो फिर उस केस में सामने वाले को चारुल नहीं बनानी है मैम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसको आता है नहीं आता, ये उसका लुकआउट है। मैं झूठ नहीं बोलूं। समझ ठीक रहे है। हो? मेरे को ये ज्यादा डिसहार्टनिंग लगता है कि बच्चे को नहीं आता है वो, चलो ठीक है अब तो लिमिट। वो जब मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है कि भाई तू है कौन जो तू मुझे बेवकूफ बनाने की सोच। सामने वाले का ईगो हर्ट मत करो। समझ रहे हो? ओके आता सर। है अच्छी बात है, नहीं आता आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर। आई एम सॉरी फॉर दैट बट आई कैन नॉट रिकॉल द आंसर राइट नाउ। आई might be mistaken or might not be sure about the answer, so rather I would prefer not to answer this question. ओके सर। झूठ नहीं बोलने का, गलत नहीं बोलने का। हाँ, अगर इफ यू आर अ बिट डाइसी अबाउट इट, मेरे को जेन्युइनली कंफ्यूजन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम जेन्युइनली कंफ्यूज कि शायद तो मनमोहन सिंह या फिर शायद तो नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। एंड आई नो आई एम आस्किंग अबाउट द प्रेसिडेंट। ऐसे मत सोचना कि मेरे को भी नहीं आता। ठीक है सर, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और anyone else, but yes, I'm not sure about it. You can be like that. ओके सर। जब ऐसा जेन्युइन केस हो, मुझे पता है कि मोदी जी तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को तो क्या ही पता हो। सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वो आपको बेवकूफ समझ ले। तो ऐसी हरकतें नहीं आता है, ओपनली बी अबाउट इट। मेरे को नहीं आता है सर, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एम अ बिट डाइसी अबाउट इट। अगर जेन्युइनली मैं डाइसी हूं तो आई विल से आई एम अ बिट डाइसी अबाउट इट। दोनों ही केसेस नहीं है। आता है तब तो बोल ही दो। यस सर। ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनीवन? सर अभी कब तक चाहिए इनसे आंसर्स? Because इज पॉसिबल। आपका जिस भी दिन इंटरव्यू है, देखिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। अच्छा, एनीथिंग हाँ रिलेटेड टू दिस सेशन और शैल आई वाइंड अप द सेशन? एक बार मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। एनीवन? अच्छा No, sir. I guess. ठीक है, fine. So finally with this we are done with the orientation to PI. I hope you must have got a clarity about the things which are being asked upon, and at least the way to start with your PI preparation. Please do start with the same at the earliest possible. Start writing your answers at the earliest possible. Do get them checked before preparing for your mock PI or before appearing for your mock PI. To get all the answers checked at the earliest possible, because we might be having a rush for the same. The better you
prepare it at the earliest possible, the more time we'll have for checking the answers. Right? Winding up the session for today. Thank you so much.